ただいまから日印経済フォーラムを執り行います。本日は、皆様、こんにちは。ナマスカール。本日、モディ首相を日本にお迎えし、日印経済フォーラムを共に開催できますこと、心より嬉しく思っております。先ほど来お話がございますように、日本とインドは自由、民主主義、法の支配などの普遍的価値観を共有する戦略的パートナーであり、長年にわたって友情と信頼を育んでまいりました。日本の技術とインドの優秀な人材、大きな市場が補完し合う形で、経済関係を飛躍的に拡大しております。多くの日本企業がメイクインインディアの一翼を担い、両国の協力は太平洋、インド洋、アフリカ、さらには欧州へと広がりつつあります。本日、両国の企業の間で多数の協力文書が結ばれたことは、日本がインドに一層投資をし、連携を強化していく決意の表れであり、両国を中心とした強靭なサプライチェーンの構築が着実に進んでいる証であります。このような瞬間に、モディ首相と共に立ち返ることは、大変に光栄なことであります。この両国の協力を未来に向け、さらに発展をさせていきたい、そのための鍵となる取り組みについて、3点申し上げます。まず、基盤となる人的交流の促進であります。私は今から6年前、インド文化を象徴する地であるバラナシを訪問いたしました。そこで出会った方々は、未来への強い希望に満ちておる、そういう方々でありました。インドの成長のエネルギーに圧倒されたことでございました。私の地元、鳥取県では、島根県とともに山陰インド協会が行政や産業界、そしてケララ州の商工会とも連携をして、両国の人的ネットワークの橋渡しをし、地方創生に新たな力をもたらしております。こうした人材の交流の拡大が、両国の未来を一層豊かにする鍵になるものと考えております。2番目に、技術と市場の融合であります。これまでモディ首相の自立したインド経済を目指す政策のもと、経済の基盤を支える分野で、日本の技術は確かな実績を積み重ねてまいりました。日本とインドは、日本の新幹線がインドの大地を駆ける、このような目標を共有をし、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道の建設に多くの企業が力を合わせております。住友不動産がムンバイで州政府と協力をして、駅周辺の開発プロジェクトが進んでおります。日本が得意といたします自動車分野では、インドに進出してから40年が経過をしたマルチ・スズキは、インド市場で圧倒的なシェアを獲得しています。スズキ、そしてトヨタは、インドで新たな大規模な投資を進めております。新たな動きもあります。その一つが、脱炭素化の切り札となるバイオ燃料に対応した車両の開発であります。バイオ燃料車の導入は、バイオ燃料の大きな需要を生み出し、インド農村の発展に貢献していきます。世界市場への動きもあります。スズキといすゞは、合計30万台以上の自動車をインドを拠点に商品開発し、インドから輸出をしております。まさに、メイクインインディア・フォー・ザ・ワールドの理念を力強く体現をしております。最後に、半導体をはじめとする重要技術分野の協力であります。半導体分野では、モディ首相のリーダーシップのもと、インドを将来の半導体製造設計拠点へと発展させる取り組みが進んでおります。東京エレクトロン、ルネサス、富士フィルムをはじめとした
日本の半導体産業は現地への投資を進めるなど、この取り組みに積極的に寄与しておられます。バッテリー分野におきましては、先月、日本から30社を超えるデリゲーションがインドを訪問し、総勢70社で日印企業のマッチングが行われました。すでに協業に向けての議論も活発であり、今後の進展を心より期待をしておるものでございます。このほか AI、宇宙、クリーンエネルギーなどのさまざまな分野において、インドの成長する市場をてこに、日印関係は大きく進展しています。不確実性の増す世界経済の中で、信頼できるパートナーと強靭なサプライチェーンを構築し、経済安全保障を確保することは、さらなる経済発展に不可欠なものであります。日印の産業界ではすでに具体的な協力に関する議論が行われ、昨日、ジェトロと両国産業界が連携して作成したジョイントアクションプランも公表されました。このような取り組みを友情と信頼の揺るぎない日本とインドの間で進めていきたい、そのように心から願っておるものでございます。以上述べてきましたとおり、私たちの間には大きな発展の可能性が広がっております。この可能性を現実のものとするための原動力は、言うまでもなく産業界の皆様方であります。インド政府とともに、私ども日本政府も、その歩みを着実に後押しをいたしてまいります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ダンニャワード。はい。Your Excellency, प्रधानमंत्री इशिबा जी, भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है, और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी, और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी, आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है, और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है, और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया
capital does not just grow, it multiplies. साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक
आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक
जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबा जी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद।